doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is Citizenship, which is part two of our Indian Constitution. But before I start, let's have a quick recap. In the first class, we talk about preamble, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं. It consists of four ingredients, that is source, nature, objective, and date. And we talk about two cases, case Anand Bharti case and Berubari case. In the next class, we talk about schedule, जिसे हिंदी में अनुसूची कहते हैं. In the original constitution, there were 8 schedules, which numbers after 4 amendment, the number has increased to 12. In historical background, we talk about that how the British era is divided into two, that is company rule and crown rule. And then we talk about different charter acts, that is regulating act, Pitt's Indian Act, then Charter Act of 1813, 1853, and so far and so on. Then we talk about making of the constitution, salient feature of the Indian constitution, source of the Indian constitution, that from different country we have adopted different thing. And the very last class we talk about part 1, that is union and its territory, from article 1 to 4. Today's chapter name is citizenship. From article 5 to 11 today we will talk about. If you remember the story, we were dealing with that the Goku asked to my book, what is India? And my book answered, that go and read the part 1 of the Indian Constitution. Similarly, the Goku's friend Deepika, this time she asked, okay, I do understand what is Indian Constitution now. And I do understand what is India now. But who lives in it? My book again answered, citizens. It means the part 2 of Indian Constitution deal with citizenship. And just try to connect. My stories are only to try to make you remember during the examination that which part is dealing with which. If you forget, that these stories can make you remember that which part was that. So let's move. Article 5. No need to just mug that these articles. The understanding of these articles is more important. So Article 5, that is citizenship at the commencement of the Constitution. What does it stand for? It means to give the citizenship rights to those who have the domicile in India at that time. It means when India get independent, it was a tough time for our constitution maker to give citizenship, how to distribute citizenship, किन को नागरिकता दी जाए. It was a difficult task. So they decided to give the citizenship to all whoever have the domicile in India, who want to stay in India, and to those also who were not Indians but they were living in India for more than 5 years and wanted to live in India, they also given the citizenship. This is about Article 5. And what is Article 6? Article 6, if you guys remember, I told you about the Indian Independent Act of 1947, in which we discussed that how India was divided into two dominant states, that is India and Pakistan. So after division, the people were migrating. So those people who are migrating from Pakistan to India, to give them the citizenship, the Article 6 deal with. 7 is about right of citizenship of the migrants who left India and came back after some time. ओके मतलब कि उन लोगों के बारे में, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात जिन्होंने इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, फिर बट आफ्टर सम टाइम दे केम बैक, तो उनको फंडामेंटल सिटीजनशिप देने का राइट की बात आर्टिकल 7 करता है. नाउ व्हाट इज अबाउट 8 के में क्या है, तो अनुसूची 8 में ये दे रखा है, अनुच्छेद 8 में ये दे रखा है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया. ओके, किन के बारे में, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप देने का प्रोविजन इन आर्टिकल 8. Okay, whenever I say this, that was about that time, that the commencement of the constitution time. 9, it means that whoever willingly will just leave the citizenship of India will not get the citizenship of India again. This about 8. 10 is about the continuation of the rights of citizenship. It means those who are getting the right from 5, 6 or 8, they will be a citizen of India till the parliament make a new law. And to make that law, the power is given to parliament through
11, Article 11, the Parliament to regulate the right of citizenship by law. And they do it also in 1955. Citizenship Amendment Bill 1955, which later become Act, Citizenship Act. In this act, there's two things: that how a person can acquire the citizenship of India and how the person can lose the citizenship of India. First, we will talk about that how a person can acquire. There are five ways: by birth, by descent, by registration, by naturalization, by incorporation. These are the five means by which a person can get the citizenship of India. Let's discuss about first, that is by birth. कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी बाय बर्थ? तो ये टाइमलाइन दी गई है, इसे रिमेंबर करने की 26 नवंबर 1950 से लेके 1 जुलाई 1857 तक क्या था. इसके बीच में अगर किसी भी कपल का बेबी इंडियन टेरिटरी के अंदर होता है तो दैट बॉय और गर्ल विल गेट द सिटीजनशिप इन इंडिया इररिस्पेक्टिव कि उसके पेरेंट्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. बट अगर ऐसा ही रहता तो अभी हम शायद टॉप पे पहुंच गए होते, सेकंड पे नहीं होते पॉपुलेशन के मामले में. तो दैट्स व्हाई दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन 2004. अब क्या था, उस टाइम से लाइन से लेके 2004 तक क्या हो गया कि पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन होना जरूरी था, अदरवाइज द बेबी विल नॉट गेट द सिटीजनशिप बाय बर्थ. मतलब कि अगर दो कपल्स हैं इंडिया में, उनके बेबी होने वाला है, तो बेबी को सिटीजनशिप तब मिलेगी जब दोनों में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन होंगे. और अभी तक क्या है, फिर जब अमेंडमेंट आ गया उस समय 2004 में, तो उसके बाद से क्या चेंज आया. ये अमेंडमेंट के पहले तक था, ये क्या है, अब यहाँ से अमेंडमेंट जब आ गया, जब जब एग्जिस्टेंस में आ गया, तब क्या हो गया कि ठीक है दोनों में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन हो, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. एंड व्हाट इलीगल माइग्रेंट स्टैंड फॉर, कि डॉक्यूमेंट के थ्रू आना चाहिए, तारों के नीचे से नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर दिस मूवी, इन दिस द हीरो जस्ट गॉन टू पाकिस्तान बाई लीगल मीन्स, तारों के नीचे से पाकिस्तान चले गए थे, तो ये इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे. इवन द गर्ल वॉज इन इंडिया, वो वीज़ा से आई थी, लेकिन जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उसके बाद अगर आप स्टे करते हैं किसी कंट्री में, तब भी आप इलीगल माइग्रेंट कहलाते हैं. तो बोथ वर द इलीगल माइग्रेंट. तो सपोज इस तरह का कोई पर्सन अगर किसी इंडियन से मैरी करता है एंड दे हैड अ बेबी, तो उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. नेक्स्ट सेकंड थिंग, बाय रजिस्ट्रेशन कैसे किन लोगों को मिलता है. बाय रजिस्ट्रेशन उनको मिलता है जो कि जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन रहे हों, उनको मिलता है. तो क्या होता है, प्रोविजन दे रखा है कि आपको 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ता है, फिर अप्लाई करना होता है, यू विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. डिसेंट से कैसे मिलता है, मतलब कि कैसे फ्लो करता है, एक से दूसरे में सिटीजनशिप कैसे फ्लो करती है. अगर आप इंडिया में आपका बेबी नहीं बॉर्न हो रहा है, तो बाहर कहीं हो रहा है, तो उसका टाइम लाइन ये है. सेम 26 जनवरी 1950 से 1992 तक क्या था कि अगर इंडिया में बेबी का बॉर्न नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, इंडियन टेरिटरी के बाहर हो रहा है, तो फादर का इंडियन होना जरूरी है, तभी सिटीजनशिप बेबी को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. तो होप यू कैन नोटिस कि अगर केवल फादर है तभी मिल रही है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. इसे चेंज किया गया. इसे चेंज करने के बाद क्या हो गया 2000, अब इस टाइमलाइन के बीच में क्या था कि अगर बेबी इस टाइमलाइन के बीच में बॉर्न होता है, तो चाहे मदर हो चाहे फादर हो, दोनों में से कोई एक इंडियन है, तो बेबी विल गेट द सिटीजनशिप. और उस टाइम से 2004 से लेकर अभी तक अगर बात करें, तो क्या है, अगर आपकी बेबी आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी होती है, तो आपको 1 साल का विंडो दिया जाता है, टाइमलाइन दिया जाता है. आपको उस समय टाइमलाइन के अंदर अपने बेबी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है इंडियन कॉन्सुलेट में. द बेबी विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. नाउ नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे मिलता है. ये इंडियंस के लिए नहीं है, बेसिकली उनके लिए जो जिनका ओरिजिन ही इंडिया नहीं है, जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडियन नहीं थे, उनको इसके थ्रू आना होता है. सिंपल है, 12 साल लगते हैं, लेकिन उसमें से 1 साल आपको कॉन्टीन्यूस इंडिया में रहना पड़ता है. उसके बाद आपको एप्लीकेशन मिलता है, अप्लाई करते हैं, फिर आप 11 साल तक यहाँ पे रह सकते हैं, आते जाते रह सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि 11 साल के एक दिन पहले आके हो जाएंगे कि हो गया 11 साल, नहीं, आते जाते रहना पड़ेगा इंडिया में. देन पर्सन विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. और कई रूल्स और भी हैं. फॉर एग्जांपल, शेड्यूल 8 में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए. होप यू गाइस रिमेंबर दैट शेड्यूल 8 विल डील विद, दैट इज लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 22 लैंग्वेजेस, उसमें से एक आनी चाहिए. आप आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, आप अच्छे इंसान होने चाहिए, तब आपको
मिल जाएगा सिटीजनशिप। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज दे रखे हैं। लेकिन इरिस्पेक्टिव, इसका मतलब ये नहीं है आपने अगर सारी चीज़ें फुलफिल कर दी तो सिटीजनशिप आपको मिल ही जाएगी। इट इज कम्प्लीटली ऑन द गवर्नमेंट कि वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। एग्जाम्पल ऑफ दैट इज Atif Aslam, if I remember, who is a singer. He also applied. He was fulfilling all the criteria, but he didn't get the citizenship of India. But at the same time, if you talk about these three people, this is Adnan Sani, Sonia Gandhi, and Mother Teresa. They all get the citizenship by naturalization. He is a singer, Pakistani singer. He was Italian. She too was Italian. They get the citizenship of India by naturalization. Back to topic. The fifth way, incorporation. The most easy way. अगर किसी इंडिया ने किसी नई टेरिटरी को कैप्चर किया, होप यू गाइस रिमेंबर द आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर हम किसी नई स्टेट को, नई टेरिटरी को कैप्चर करें, अपने में एडमिट करें, तो उसमें जो लोग रह रहे होंगे उन सबको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बाय एन ऑर्डर सबको सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसका एक एग्जांपल भी है, इफ़ यू गाइस रिमेंबर पुडुचेरी का एग्जांपल। पुडुचेरी में क्या था, जब हमने उसे कैप्चर किया पोर्टुगीज से, तो क्या हुआ कि हमने उस नागरिक जब कैप्चर किया था बाय ऑर्डर ऑफ 1962, ऑर्डर नंबर है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस ऑर्डर के थ्रू हमने क्या किया, सबको नागरिकता दे दी। दैट वाज ऑल अबाउट। और अगर आपको याद करना है ये 5 तरीके, तो आपने मूवी देखी बद्रीनाथ, तो इसके जो वर्ड्स हैं वो आपको याद दिलाएंगे। बी स्टैंड फॉर बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ये 5 तरीके हैं कैसे आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पा सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट कि कैसे आप खो सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप। फर्स्ट वे, 3 तरीके हैं, 3 डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, रिनंसिएशन। इसमें क्या होता है, अगर इफ़ यू विलिंगली सरेंडर योर सिटीजनशिप एंड एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, देन यू विल नो मोर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, अंडरस्टैंड। आसान था कि अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति से क्या किया, किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर दी और हमारी सरेंडर कर दी, तो आपकी नागरिकता से छीन जाएगी। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि यू हैव नॉट इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट बट यू just acquire the citizenship of some other country. In case of Akshay Kumar, the same thing happened. He applied for Canadian citizenship. He get the citizenship of Canada. At that time, automatically the citizenship of India was cancelled. Because of that, he was not allowed to vote this year. The third way, deprivation, which is कि you can lose the citizenship of India on the following basis. For example, if you did some fraud, if you are disloyal to our Indian constitution, if you found us doing friendship with the enemy country, you are sharing our data. In this all following heads, the person can lose the citizenship of India directly. And at the same time, those who obtain the citizenship by registration or naturalization, और उनको जेल हो जाती है 2 साल की लगातार की, तब भी उनकी नागरिकता वापस छीन ली जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट। तो आज का स्टोरी क्या था, हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप क्या है, ऑल इज ऑल अबाउट फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, फिर वी गेट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. इट डील्स विद जस्ट how people can acquire the citizenship of India. Then we talk about how a person can lose the citizenship of India. We see that how Akshay Kumar loses the citizenship, and then we get to know that how Adnan Sani and Sonia Gandhi get the citizenship of India. This we all talk about. So let's end today's class. See you in the next class. Thank you.